So let's start the session. I'll just give you a brief of the entire session, how it will be going on. सबसे पहले I'll be introducing myself, give a few snippets about who I am. उसके बाद मैं prelims के बारे में बात करूँगा. After that, I'll be sharing my main steps, and thirdly, it would be the interview strategy which I followed and which I think worked for me. And at the end, I'll answer the questions of each and every one of you. If in case you feel like asking anything, please start commenting. I'll take on each and every question at the last stage so that there's a continuity which is maintained in the entire video. And at the end, I will also cater some of the miscellaneous questions related to the UPSC examination altogether. May that be the social pressure or the regular motivation that is required. So, and yes, a disclaimer that the video will be going on in a slow pace. So if at all you are watching this at a later stage, 1.5 or 2x, please dekh lena, because we are generally used to having a fast videos during our UPSC preparation. So not wasting much more time. Speaking about myself, in the introduction, I am Smith Patel, All India rank 562 in this year's UPSC Civil Services 2023. I come from Thane district in Maharashtra, which is a suburb of Mumbai. Yes, the Sapnon ki Nagari, Mumbai. And I have completed my basic schooling here itself. And I have graduated in mechanical engineering from Mumbai University. Thereafter, I have worked in the real estate sector for a few years. And later on, since 2021, I was full-fledged into the UPSC preparation journey. And this was my fifth attempt, first interview, and was lucky enough, or say we can say my efforts were good enough to get my name enrolled into the holy PDF of UPSC. So speaking about the prelims, just a second. Coming to the prelims part, obviously the prelims is quite close together, close to us, like within next say 2 weeks, 2 odd weeks. Yes, so everyone are almost on the verge of their completion of revision, I feel. So what I did for my prelims was, I would say prelims is more about the game of confidence and how you tackle the tough questions, because I feel 30 से 35 क्वेश्चंस तक मैक्सिमम किसी कैंडिडेट को फॉर श्योर आते होंगे. आफ्टर दैट आई डोंट थिंक श्योर शॉट हो सकता है किसी के पास में आंसर. सो एक लॉजिकल गेस और कैलकुलेटेड रिस्क वाला जो फंडा आता है, मे दैट बी elimination method, or may that be your knowledge, the subconscious knowledge, or your gut feeling based upon your knowledge that gives you the correct answer, or maybe how much risk you take. So I would say, for UPSC prelims, I would say one must start playing on one's strengths. That's what I did. मुझे पता था कि पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऑलरेडी रहा है, इकोनॉमी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन आई हैड ज्योग्राफी ऑप्शनल इन दिस यूपीएससी प्रिपरेशन और द यूपीएससी मेन. तो ज्योग्राफी बट ऑब्वियस है कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा इवन फॉर प्रीलिम्स. नाउ सिंस ज्योग्राफी वाज माय ऑप्शनल, environment was also catered to some extent to a great level. So I usually used to play on my strengths. पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन पे फोकस करो. मैं इन पे ज्यादा फोकस करता था. आई न्यू व्हाट माय वीकनेसेस वेयर. फिर चाहे वो हिस्ट्री हो गया, मे दैट बी मेडिवल हिस्ट्री टू बी मोर प्रिसाइज, या फिर एंशियंट हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा बहुत पार्ट था. सो द लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग जो लेते हैं, लाइक आई ऑलरेडी स्पोक कि 40 मैक्सिमम 30-35 क्वेश्चंस जो किसी को शॉर्ट शॉर्ट आते हैं, उसके बाद जो अटेम्प्ट किए जाते हैं, वहां पे कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ पे. So for any newcomer, or even someone who is kind of getting setbacks in prelim stage itself, I would recommend कि आप अपने strengths को समझिए. क्या strong points है आपके, उसको इतना strong बनाइए कि और कि उस क्वेश्चन की एक्यूरेसी आपकी मोर देन 90% हो जाए. ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा मॉक से. सो मॉक जो होते हैं, मॉक पे प्रीलिम्स के लिए, वो सिर्फ एक या उसके लिए नहीं होते.
बट मॉक्स होते हैं आपके स्ट्रैटेजी के लिए, मॉक्स होते हैं एग्जाम सिनेरियो में आप किस तरह से अटेम्प्ट करते हो किसी पेपर को, उसके लिए मॉक्स होते हैं आपके रिस्क लेवल को चेक करने के लिए। सो मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं मॉक के। सो वन शुड, yes, no doubt one should attempt mocks, but again कितने करने चाहिए कितने नहीं करने चाहिए कैसे करने चाहिए, I'll delve into it at a later stage. So speaking of the basic book list, what I followed for the prelims is polity के लिए again Lakshmikant, the holy book which everyone refers to, and I think polity is more than enough for the prelims. But हाँ उसमें जो in between the lines जो पूछा जाता है, आजकल का जो ट्रेंड चले आ रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो या किस तरह से उसका रेफरेंसेस ले रहे हो या sorry, comparative studies कर रहे हो. Say for instance, whenever I was studying president, parallelly I used to study governor as well. Whenever you are studying prime minister, just have a comparative study of CM as well. Whenever you're studying national emergency, have a state emergency or comparison as well. With this you can develop a comparative analysis, and it helps you remember things or analyze things in a much more better manner, जो आपको आगे जाके मेंस में भी काफी हेल्पफुल हो सकता है. So this was quality for me. I would again suggest that if ever you are starting it for the first time in UPSC, then NCERT also plays a very important role. However, कौन से सब्जेक्ट के एनसीईआरटी करने चाहिए कौन से नहीं, ये अगेन आपके स्ट्रेंथ पे जाता है. से फॉर इंस्टेंस पॉलिटी वाज समथिंग व्हिच आई एंजॉयड रीडिंग, एंड जब मैंने लक्ष्मीकांत उठाया एंड जब रीड करना स्टार्ट किया तो आई फेल्ट दैट ओके दिस बुक इज रिटन इन अ वेरी lucid manner जो understandable भी है. And so I didn't feel of going to the 5th 6th standard or 7th standard NCERT and understanding things. So मैंने सीधा 11th का और 12th का NCERT उठाया for polity and started reading it. Same goes with geography. Since geography was my optional, I started understanding geography from 5th 6th standard. Why? Because I wanted to have a strong foundation in it. And if at all किसी को प्रॉब्लम हो रही है ज्योग्राफी में तो आप स्टार्ट करिए. छोटे स्टैंडर्ड के जो होते हैं 6 7 वाले वो काफी जल्दी भी हो जाते हैं. However, 11th and 12th के NCERT for geography is very important. Like even after completion of my optional geography optional का study, I keep referring them because there are many things mentioned in a very easy manner, in a more explanatory manner. चाहे वो diagrams हो चाहे वो maps हो, वो physical geography के लिए खास करके वो बहुत अच्छे से explain किया गया है उसके अंदर. So one must not forget uh, these basic sources which I'm mentioning right now. एनवायरमेंट की बात की जाए तो एनवायरमेंट, इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनवायरमेंट प्रेजेंटली हैज बिकम हाईली डायनामिक टॉपिक. सो उसमें आई फील आफ्टर सम बेसिक रीडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड शंकर आईएएस बुक, one must try linking them to the current affairs. से फॉर इंस्टेंस हीट वेव्स अभी काफी चर्चा में रहा है इंडिया के अंदर खास करके, तो उसका क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वेजिव स्पीशीज पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, चाहे वो बढ़ सकते हैं या नहीं. तो ऐसे आप अगर रिलेट करके पढ़ते रहोगे, हीट वेव बेसिकली जो आ रहा है वो कौन आईएमडी बताता है, कौन डिक्लेयर कर रहा है, कौन सा उसका स्टैंडर्ड है. देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हीट वेव, राइट. तो ये आप लिंक करके यदि पढ़ते रहोगे तो काफी होलिस्टिक अप्रोच आपका बनते जाएगा, एंड चीजें याद भी इजीली रहेगी, रिवाइज भी अच्छे से होगी, एंड एग्जाम सिचुएशन में रिकलेक्ट भी काफी अच्छे से हो सकती है. And economy again, it is a highly dynamic topic. So after some basic topics ka fundamental analysis, I would recommend focusing on current affairs directly from newspaper or any current affairs magazine. And at the same time, one must not forget economic survey and budget, because those are the things that drive Indian economy by and large. So उसके अंदर कोई नई चीज होगी, कुछ नया मेंशन किया गया होगा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कैसे है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या है, फिस्कल पॉलिसी में टारगेट्स क्या है, उस हिसाब से उसके बेसिक फंडामेंटल सबको पता होने चाहिए. ओनली आफ्टर दैट यू कैन बिल्ड अपॉन. एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमी में आपने देखा होगा कि कुछ बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस घुमा फिरा के काफी बार पूछे गए. मे दैट भी मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चंस हो गए, जैसे इन्फ्लेशन का कुछ हो गया. ये सारी चीजें काफी फ्रीक्वेंटली लाई जाती है. तो इसके ऊपर आपका अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, सो यू वोंट बी एबल टू यू नो
get through those questions easily at the exam center. So if it so like I already mentioned, economy was my strong point. So I might be quite biased towards economy, but yes. So one must, again, it's upon each one of us that how we cater to these things. किसी का शायद you can say हिस्ट्री अच्छा होगा, हिस्ट्री ऑप्शनल वालों का काफी बेटर होता है, बट आई सो दे कैन go through those subjects to score in the exam. At the end, cut off clear karna is the target, right? So yes, I focus more on these topics. And रही बात हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री वाले पार्ट की, so मैं उसमें कम ही रिस्क लेता था. if I am not sure about the answer, तो ही अटेम्प्ट करता था, अदरवाइज आई लेफ्ट देम देयर इटसेल्फ. तो ये थे मेरे बेसिक बुक लिस्ट के बारे में. प्रीलिम्स के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँ तो आई even in the mock test, I practiced attempting the paper in 3 phases. फर्स्ट फेज मेरा होता था अराउंड 30-35 मिनट्स का. उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं पूरे पेपर का 100 to 100 क्वेश्चन स्किम हो जाने चाहिए नजर के नीचे, बिकॉज आई हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर कि कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस नेक्स्ट पीछे के क्वेश्चंस के क्वेश्चन फॉर्मेट में बन जाते हैं. So there is some kind of linkage that we find at that point of time. So अगर मैंने आगे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके मार्क कर दिया है, तो that could be a situation कि मैं पीछे जाऊँ, मुझे कुछ क्लू मिले और आगे मैं चेंज कर पाऊँ. So it's better कि अगर एग्जाम सेंटर में आपके सामने 100 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं and they want you to play with them for the next 2 hours, just play with all the questions, get through the best ones, स्ट्रेंथ पे खेल लो, एंड उसके बाद ओएमआर भरना स्टार्ट करो. सो व्हाट आई अगेन कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में देखता था कि कौन से श्योर शॉट मुझे आ रहे हैं, जिस क्वेश्चन में मुझे सही दिस इज द आंसर बेस्ड अपॉन माय नॉलेज, बेस्ड अपॉन माय अंडरस्टैंडिंग, उसको मैं मार्क कर देता था. एंड देन आई यूज्ड टू काउंट कि कितने क्वेश्चंस मेरे इस तरीके से हुए. नाउ इवन इन द मॉक पेपर आई एम डूइंग द सेम थिंग. अगर उस टाइम पे फिर एनालिसिस करता था मैं कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है. सो आई हैड मेड दिस थिंग कंफर्म्ड इन माय माइंड कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, उसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% होनी चाहिए, बिकॉज आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ ऑन माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन कि ये सही होंगे, because this is the number of questions that I attempt in the first go determines how many questions I will be attempting in the entire paper. Because आगे मेरे को रिस्क लेना है, तो मैं कितना रिस्क लूंगा ये मैटर करे, ये डिपेंड करेगा मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने आ रहे हैं. सो इवन से दिस वाज माय फिफ्थ अटेम्प्ट, इवन ये वाले अटेम्प्ट में भी मेरे हार्डली 32 या 33 क्वेश्चंस हुए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो आई न्यू दैट आई हैव टू यू नो पुश माई सेल्फ टू अटेम्प्ट मच मोर क्वेश्चन. बट वो किस तरीके से करूंगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ. सो अगेन coming back to the PYQs, attempting PYQs as mocks. So I would suggest 2014 से अब तक सारे पेपर्स जो है वो कर लेने चाहिए PYQs, एंड सिर्फ देने के लिए नहीं बट एनालिसिस के लिए करने चाहिए. वो कैसे होगा? तो वो होता है हर एक ऑप्शन को चेक करना, हर एक क्वेश्चन का बैकग्राउंड देखना, उसके फंडामेंटल्स को देखना, एंड ये देखना कि ये जो ऑलमोस्ट 1000 या 1100 क्वेश्चन होंगे 10-11 ईयर्स के, ये देखना कि कोई स्पेसिफिक लिंक हो रहा है क्या. देर आर क्वेश्चन गेटिंग रिपीटेड, वर्बेटिम रिपीट होते हैं, बट आई डोंट थिंक ये एवरी टाइम होता है. बट यस, द थीम्स डू रिपीट. मे दैट बी लाइक आई व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज हिस्ट्री में बुद्धिज्म का हो गया, जैनिज्म का हो गया, ये सारी थीम्स काफी रिपीटेटिव होते रहती हैं. सो मे दैट बी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का जैसे मैंने बात की आपसे पहले, तो ये सारी चीजें होते रहती हैं. तो अगर आपको एक पेपर में किसी एक टॉपिक पे आप मिस्टेक कर रहे हो, एंड अगर आपने उसको स्ट्रेंथन कर लिया, देन यू कुड काइंड ऑफ परफॉर्म बेटर वेन एवर दोज थीम्स गेट रिपीटेड. सो पीवाईक्यू मैं इस तरीके से ही करता था. कम से कम पीवाईक्यू एनालिसिस या कोई भी मॉक एनालिसिस में 4 से 5 घंटे लगने चाहिए. अगर आपको ये नहीं लग रहे तो देन यू आर डूइंग इट फॉर द नीड सेक, आई वुड क्लेम इट. क्योंकि अगर आप मॉक कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो. उस 100 क्वेश्चन में से प्रोबेबली आपके पास 60 to 70 थीम्स अच्छे खासे निकल के आते हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो. एंड यदि आपने 10 से 11 मॉक कर लिए पीवाईक्यू वाले ही, अगर लगा के सही टाइम लगा के, तो
फर्स्ट आपकी स्ट्रैटेजी सही बैठ जाएगी, जो मैंने आपसे बताया कि मैं किस तरीके से 3 स्टेज में करता हूँ। ये आपकी स्ट्रेंथन हो जाएगी। नंबर 2, आपका थीमेटिकल एनालिसिस जो मैं बता रहा हूँ कि ये थीम्स रिपीट हो रही है, किस तरीके से पूछ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में किस पार्ट पे जा रहे हैं या नहीं, एंशिएंट में किस तरीके से जा रहे हैं, मेडिवल के क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? आप सब अगर मुझे तो पता है कि हिस्ट्री मेरा वीक है, तो मैं ट्राई करूंगा किस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाऊँ, कम पढ़ के ज्यादा एप्लीकेशन ले पाऊँ। मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया में भी गांधीयन फेज के पास के और ज्यादा आ रहे हैं। व्हाई नॉट फोकस ऑन दैट? वैसे ही टाइम कम होता है, वैसे ही वी हैव टू मच टू स्टडी, सो वी कैन यू नो जो स्मार्ट स्टडी का बोलते हैं वो शायद इसी तरीके से होता है कि आप इसी वे में अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, एंड काइंड ऑफ गेट इनटू अ पॉजिटिव एंड जो कट ऑफ के ऊपर होता है। सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम माय साइड। एंड अगेन जो पीवाईक्यू है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ डोंट मिस ऑन दैट। रही बात ऑनलाइन जो क्लासेस के मॉक्स आते हैं, उसमें आई वुड सजेस्ट कि आई डोंट बिलीव इन नाउ opinion, but I don't believe in solving too many mocks and भर देना है। But I would suggest कि even I believe strongly in it कि जितने भी mocks करो होता है एग्जाम से पहले का, यू शुड बी एबल टू रिवाइज देम ऑल। फिर चाहे वो पीवाईक्यू वाले मॉक हो या फिर ये वाले हो, क्लासेस वाले हो। एंड क्लासेस में भी आई वुड सजेस्ट कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे मेरा था पॉलिटी, मेरा था एनवायरमेंट, मेरा था ज्योग्राफी, तो अगर उनके फुल मॉक अगर आपको मिल रहे हैं ऑन दैट सब्जेक्ट, वो वाले आप कर लीजिए। एंड जो एंड में फुल मॉक्स होते हैं जिसमें सारा कुछ आ जाता है करंट अफेयर्स के साथ में, आप वो कर लीजिए। अब ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट वाला होता है, वो भी जरूरी होता है। तो ऐसे सिलेक्टिव आप कर सकते हो। मगर मैं इनिशियली जो मेरे मिस्टेक्स होते थे उससे मैं बताऊं तो मैं आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री, सिंस मेरा वीक है, मैं उसके पूरे मॉक्स लगाता था, full fledged history के mocks, and I used to get demotivated to a great extent because I used to score really very bad, and thirdly मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर यही नहीं हो रहा है तो बाकी कैसे हो पाएगा। बट देन आई रियलाइज कि यूपीएससी डजंट वांट यू टू नो एवरीथिंग फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, you have to play on your strength as I mentioned earlier, and उसके बाद if you are able to get those things correct, तो obviously कट ऑफ ही क्लियर करना है, तो कोई स्कोरिंग का तो है नहीं, यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपने स्ट्रेंथ पे के लिए। लास्ट जो अभी 1-2 वीक बचे हुए हैं उसमें जो मॉक्स आपने कर दिए हैं, अभी ज्यादा मॉक्स करने का तो टाइम है नहीं, तो उसके अंदर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, मॉक्स को क्या गलतियां की थी उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उस टॉपिक को आई वुड से पूरा का पूरा आप सजेस्ट पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए स्टैटिक बुक से। और उसके बाद बेसिक जो भी स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको आप कवर अप कर लीजिए करंट अफेयर्स के, या मे बी कोई मैगजीन है या आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लीज उसको कर सकते हैं। प्रीलिम्स में लास्ट 2-3 साल से देखा गया है सीसैट हैज बीन अ प्राइम विलन। तो यस, सीसैट ने मुझे भी एक बार रेस से बाहर कर दिया था, सो आई नो द पेन लाइक स्कोरिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स इन जीएस and getting out of the race because of CSAT pains a lot. Being an engineer, it pains much more. So CSAT के लिए I would suggest कि ईगो को साइड में रखिए, कॉम्प्रिहेंशन को भी उतना ही फोकस करिए जितना क्वांट्स को करते हैं। लाइक आई डोंट डिवाइड द अदर पार्ट अदर देन कॉम्प्रिहेंशन या इंग्लिश वाला पार्ट इनटू लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स और एनी डिफरेंट स्टफ। मैं एक क्वांट्स बताता हूँ एंड एक कॉम्प्रिहेंशन या इंग्लिश को बात करता हूँ। तो क्वांट्स के अंदर देख लीजिए, चीजें रिपीटेटिव होती है, उसके अंदर भी थीम्स रिपीटेटिव होते हैं। मे दैट बी क्लॉक का क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गए, एवरेज वाला हो गया, डिस्टेंस टाइम वाला हो गया, विच एवर फील्स आपको जो इजी लग रहा है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए एंड उसके मार्क्स लगवा दीजिए, चाहे वो पीवाईक्यू से लगाइए या किसी क्लासेस के लगाइए। उस सीसैट में मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें तो 66 का ही कट ऑफ है लाइक एवरीवन नो। तो उसमें ये होता है इंपॉर्टेंट कि आप कौन से क्वेश्चन ना करें। सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अगर आप गलत क्वेश्चन में फंस गए तो नंबर 1 आपका आंसर भी गलत आ सकता है या आप एंड में अटेम्प्ट भी नहीं करोगे, एंड नंबर 2 आपका टाइम चले जाएगा। जो अमाउंट ऑफ टाइम आप किसी और क्वेश्चन में अच्छे से लगा सकते थे वो आपका वेस्ट हो गया। तो यदि क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि ओके दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, लीव इट देन एंड देयर। फिर लास्ट में देखना अगर टाइम बचता है तो करेंगे, वरना फिर रहने दो। वैसे ही हमको कहाँ आ रहा था।
तो कुछ छोड़ दीजिए, पेपर सेटर ने काफी टफ सेट किया होगा उनके हवाले। एंड यस, तो सीसैट के ऊपर एज सच कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाता था मैं, बट यस इंग्लिश पे उतना ज्यादा फोकस करना मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट से स्टार्ट कर दिया है। इंग्लिश में भी अगर आप प्रीवियस ईयर के चेक करेंगे तो एक अपने तरफ से ऑब्जर्वेशन बताना चाहूंगा कि उसमें होता है दैट assumptions वाले क्वेश्चंस आते हैं एंड लॉजिकल कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आई हैव एक्सपीरियंस इज कि assumptions वाले क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रॉन्ग आंसर इज कंपैरेटिवली हायर एज कंपेयर टू द लॉजिकल कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। सो अगेन जो 27 या 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश के, उसमें से अगर आपको कुछ क्वेश्चंस छोड़ने हैं, so try leaving those assumption वाला questions as compared to the logical conclusion वाला। तो उसमें भी अगर आप यही पीवाईक्यू एनालिसिस करके या मॉक टेस्ट जो हो रहा है उसमें से अपने आप को एनालाइज करिए कि आपके स्ट्रेंथ क्या है एंड जस्ट प्ले अकॉर्डिंग। सो दिस वाज आई थिंक all from my side for prelims. Now coming to the मेंस पार्ट, मेंस में सबसे जरूरी होता है कि आप आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हो, बिकॉज मेंस इज ऑल अबाउट हाउ well you are able to present your knowledge than how knowledgeable you are. So इसमें प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, उसमें कंटेंट भी मैटर करता है, उसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज अगर आपका क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट रह गया, सो इवेल्युएट क्या करेगा। एंड अगर आप लोगों ने जैसे ही लगाए होंगे मॉक्स इवन मेंस के, so you would have experienced the same thing कि टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा ज्यादा होते हैं based upon the number of questions that we have to attempt. So answer writing practice is must। एंड उसमें भी अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो, या जीएस टू, जिसमें आपको कम मेहनत करके ज्यादा मिल सकता है अप्रोच आउटपुट, क्योंकि ऑलरेडी प्रीलिम्स में लक्ष्मीकांत तो वी हैव डन ऑलरेडी। देन बेस्ड अपॉन द सिलेबस आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से सिलेबस में टॉपिक्स नहीं है जो जो लक्ष्मी कौन कौन से सिलेबस में टॉपिक है जो लक्ष्मीकांत में नहीं है। जो पीछे वाला पार्ट होता है सिलेबस, जस्ट सेकंड, सिलेबस का जो पीछे वाला पार्ट है जीएस टू का आई एम स्पीकिंग, तो जिसके अंदर गवर्नेंस का टॉपिक हो गया, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के फंक्शनिंग का पार्ट हो गया, आईआर वाला पार्ट हो गया। सो वो वाले पार्ट्स पर भी आप फोकस करिए। एंड आई वुड से उसके उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना, तो एक बेटर आउटपुट निकलते आएगा। एंड आई हैव फ्यू क्वेश्चंस और फ्रेमवर्क ऑफ फ्यू क्वेश्चंस जो मैं उसके हिसाब से फॉलो करना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो कमिंग बैक टू द मेंस का स्ट्रेटेजी। मेंस पेपर वन इज अ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ पेपर, जहाँ पे आपको हिस्ट्री भी मिल रहा है, सोसाइटी भी है, ज्योग्राफी भी करना है। तो काफी वाइड स्पेक्ट्रम है। हिस्ट्री में भी वी गेट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला पार्ट, मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट, एंशिएंट या आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। सो देर इज मच ऑफ द स्टडी मटेरियल टू बी स्टडीड थ्रू, whereas the questions are also quite diverse अगर आप recent trends देखेंगे तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने जो सोर्सेस है उसको मिनिमाइज करके रखिए। बिकॉज एट द एंड, क्योंकि मैं सिंस आई एम एन इंजीनियर, तो मैं हमेशा यही देखता था कि रिवर्स इंजीनियरिंग किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे एग्जाम डे में, लाइक आपने टाइम टेबल देखा ही होगा, 5 पेपर मुझे 3 दिन में देने होते हैं फर्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीकेंड पे मुझे 4 पेपर देने होते हैं। तो उस 5 पेपर, उसमें भी दिन में 2 पेपर, तो आप कैसे रिवाइज कर पाओगे उस 2 घंटे के बीच गैप में। या फिर आप फर्स्ट पेपर ऐसे का दे के आए, उसके बाद यू हैव सम 5-6 आवर्स विथ यू जिसमें आप पढ़ सकते हो, फिर आपको सोना भी है, नेक्स्ट दिन 2 पेपर देने। आप किस तरीके से रिवाइज कर पाओगे नेक्स्ट 2 पेपर, जीएस 1 एंड 2, क्योंकि दिन में दोनों पेपर लिखने हैं आपको। अगर वहां पे अगर आपको 3 घंटे मिल रहे हैं जीएस 1 के लिए, 3 घंटे मिल रहे हैं जीएस 2 के लिए, तो उन 3 घंटों में मैं 250 मार्क्स के पूरे पेपर का कैसे पढ़ पाऊंगा। आई नीड टू हैव दैट मच ऑफ कंसाइज नोट्स विद मी, तब जाके मैं ये कर पाऊंगा, राइट। So this is possible only when you have that much of consolidated content with you। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको स्ट्रॉन्ग रिवीजन करने की जरूरत है। जैसा जैसा आप ज्यादा रिवाइज करोगे कम सिलेबस या कम स्टडी मटेरियल का, तो आपको चीजें अच्छे से रिकलेक्ट होते आएंगी, आपको चीजें एनालिटिकली समझते आएंगी। तो अगर, क्योंकि मेंस इज नॉट अबाउट द मगिंग अप ऑफ फैक्ट्स एनीमोर,
वहां पे आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे जो फैक्ट्स है या जो भी बेसिक्स आपके हैं वो अप्लाई होते हैं, बट दैट एप्लीकेशन पार्ट comes from the analysis, and that analysis comes from the actual understanding of the topic. So उसके लिए आपको किसी एक टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसको वाइडर स्पेक्ट्रम में समझना पड़ेगा, क्योंकि जो मल्टी डायमेंशनल या होलिस्टिक आंसर का अप्रोच जो होता है उसके अंदर आपको अलग अलग डायमेंशन से सोचना पड़ेगा उस चीज के बारे में, उसको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वे में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका एक बेटर स्कोर निकल के आएगा। सो अगेन जीएस वन या पूरे यूपीएससी के लिए आई वुड सजेस्ट कि मटेरियल्स कम रखिए, बट उसको बार बार रिवाइज करते चलिए, बिकॉज अगेन मैं जो बोल रहा हूँ कि उस दिन पे मुझे जो रिवाइज करना है वो मैं किस तरीके से करूंगा वो मैं आज सोचूंगा, तब जाके आप उतना कंसाइज फॉर्मेट बना पाएंगे। अदरवाइज अगर पूरा बुक ही बल्क लेके चलना है तो आई डोंट थिंक वहां एग्जाम के एक दिन पहले भी आप रिवाइज कर पाओगे। सो ये चीज के सेकेंडली आई वुड फील आई सजेस्ट कि जैसे ही आप पढ़ रहे हो तो साथ में ट्राई करना कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओ, बिकॉज दिस ईयर आई यू नो गॉट 562 रैंक, there are people who and I have got quite less in GS3 from my expectation. So I feel that presentation not after some point of time knowledge या content almost सबका equal हो ही जाता है after say 2 or 3 years into this UPSC. So after that time, what plays an important role is the presentation part. So how well are you able to present yourself? How well are you able to structure your answers? आप चाहे उसके अंदर कुछ फ्लो चार्ट या डायग्राम ऐसा कुछ ऐड कर पा रहे हैं, बिकॉज यू नो जस्ट इट्स बेसिक थिंग यार। आप अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप पेपर चेकर के हिसाब से सोचिए, यू हैव 50 कॉपीज विथ यू, आप चेक करते जाओगे, लिखा तो अच्छा है, लिखा तो सही है, बट कोई अच्छे तरीके से लिखा है तो ऑब्वियसली हाफ 1 मार्क उसको ज्यादा ही मिलने वाला है। एवरी क्वेश्चन getting half of marks extra from others, because it's a comparative analysis, comparative competition in this entire UPSC, gives you a very large edge in this entire paper. So I would say suggest कि आप जैसे आंसर राइटिंग ट्राई कर रहे हो, ट्राई करना कि उसको कितने अलग तरीके से और अच्छे तरीके से कर पाओ, rather than just completing the paper. क्योंकि completing is the primary agenda, yes obviously, but then once you start completing the paper, start focusing on this part as well, कि आप कितना qualitatively उसको improvise कर सकते हो। अगेन नाउ मेंस पेपर आई वुड सजेस्ट कि कोई एक टॉपिक है ना उसको आप मल्टीपल पेपर्स में कैसे लिंक कर सकते हो ना उसको देखिए। अगेन आई वुड टेक द सेम एग्जांपल जो हीट वेव्स का मैंने पहले लिया था। हीट वेव्स एज अ ज्योग्राफिकल टर्म कुड बी आस्क्ड इन जीएस 1 एज वेल। हीट वेव्स को आप जीएस 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ले सकते हो, वहां पे भी वो उतना ही रिलेवेंट हो जाता है। उसको आप इकोनॉमी के अंदर भी कंसिडर कर सकते हो कि इकोनॉमिक को कितना लॉस हो रहा है, ह्यूमन लेबर का लॉस कितना हो रहा है, मशीनरी का वेयर एंड टेयर या ब्लास्टिंग हो रहा है, काफी जगह पे एसी फट रहा है तो उसका कैसे इम्पैक्ट हो पाएगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस ये सब देख सकते हो। एंड नंबर 3, आप इसको अगर थोड़ा स्मार्टली लिंक करना चाहो तो आप इसको जीएस 2 के साथ भी लिंक कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। एज एन एग्जाम्पल कैसे? तो अर्बनाइजेशन या अर्बन लोकल बॉडीज के यू नो कोऑर्डिनेशन का जो प्रॉब्लम है, या फिर एक वन साइज फिट ऑल का अप्रोच हम लोग यूज कर रहे हैं, वहां पर जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम यूज किया जाए। कुछ सिटीज के चैलेंजेस अलग है, कुछ सिटीज के जोग्राफिकल चैलेंजेस अलग है। सो यू हैव टू डेवलप सर्टेन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज जो उस रीजन के लिए स्पेसिफिक हो। ये आप जब सजेस्ट कर रहे हो कहीं पे तो वहां पे आप एग्जाम्पल डाल सकते हो कि हीट वेव्स का इम्पैक्ट हर जगह अलग अलग हो रहा है। जैसे हमने ऑलरेडी देखा है, दिल्ली में देखा है, मुंबई में देखा है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के सिटी में देख लो, वहां पे अलग है। तो इसको एज एन एग्जाम्पल आप लगा सकते हो। सो व्हाट आई वाज ऑलरेडी टेलिंग यू इज कि कम पढ़ो, मगर ये ज्यादा सोचने पे ध्यान दो कि मैं जो पढ़ा हुआ है मैंने उसको कितना अच्छे से मैं अप्लाई कर सकता हूँ अलग अलग जगह पे। दिस इज समथिंग विच हेल्प मी अलॉट सिंस आई हैड ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो मैं उसके लिए केस स्टडीज रेडी करता था, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल्स डायग्राम्स सब रेडी किए थे। एंड इंडिया के डायग्राम हो गए, एशिया का हो गया, वर्ल्ड डायग्राम, ये सारे मैंने काफी अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए थे फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। बट आई kind of exploited those diagrams or those examples into my GS to a great extent. And GS1 में काफी अच्छा मुझे आपका आउटपुट दिखा भी है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इंटरलिंक कर पाएंगे टॉपिक्स को rather than compartmentalizing each and every subject that you are studying, ये काफी हेल्पफुल रहेगा यूपीएससी में, बिकॉज यूपीएससी itself is asking questions in a more interlink manner। तो ये एनी विच वेज काफी बेटर ही होगा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो
ये GS 1 2 3 ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटेजीज आई वुड से। GS 4 के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, सिलेबस इज द बाइबल फॉर अस, वी कैन से। सिलेबस का हर एक वर्ड GS 4 का मिस नहीं होना चाहिए। हर एक जो क्वालिटीज ऑफ द सिविल सर्वेंट जो मेंशन की गई है, और मे दैट बी एम्पैथी और एनी सच थिंग, तो वो उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। उसके पर्सनल लाइफ से एग्जांपल्स यू कैन write it down. You can have examples from history, or some big personalities, or maybe some successful civil servants who have done some amazing work into their careers. इसको आप नोट डाउन करके रखिए, उसको आप लिंक करके रखिए कि इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल को मैं किस किस टॉपिक के साथ लिंक कर सकता हूँ। अगेन आई टाइम एंड अगेन टेल यू द सेम थिंग, कि जो भी पढ़ेंगे साथ में ये ज्यादा फोकस करिए कि इस एग्जाम्पल को या इस टॉपिक को मैं कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ। यही एक चीज होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये रेपिटेटिव हो रही है, बट ऐसा नहीं है। पेपर्स अलग अलग है, यू कैन यूज द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। द वे यू यूज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। से जो मैंने GS 4 में आपसे बात कर रहा हूँ, कि मैं किसी एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर चाहे कोई ऑफिसर हो या कोई भी चीज, तो उनका एक छोटा केस स्टडी मेरे पास है कि उन्होंने इस तरीके से काफी अच्छा किया हुआ है। ही हैज बीन इंस्पायरिंग द एंटायर सिविल सर्विस फ्रेटर्निटी बिकॉज ऑफ दैट। सो ये सारी चीजें मैं GS 4 में तो लिख ही सकता हूँ, बट दोज क्वालिटीज ऑफ हिम could very well be used, और those case studies could be used in GS 2 as well। वहां पे भी हम लोग सिविल सर्वेंट्स के रोल के बारे में तो लिख ही रहे हैं, वहां पे भी मेंशन तो करते ही हैं। That qualities or that examples can very well be used in essay as well. So interlinking of papers and extracting the maximum that you have from your sources is very important for this examination that I said. So again, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एफर्ट्स के ऊपर बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में जो टाइम पीरियड होता है दैट इज वेरी शॉर्ट। आई मस्ट से 90 days मैक्सिमम मिल रहा है, 90 to 100 days। उसके अंदर आपको 9 सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करनी है। एक्चुअली स्पीकिंग 2 लैंग्वेज निकाल देंगे फिर भी 7 सब्जेक्ट्स कट शॉर्ट आपको तैयारी करनी होती है। So time management, strategizing, at the same time attempting mocks. For again, I cannot focus more on that, because it is utmost important कि आप मॉक्स कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो फॉर मेंस, बिकॉज उसमें टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेटेजाइजिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहती है। मैं अपना एग्जांपल से बताऊँ आपको, इस बार ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैंने फर्स्ट पेपर जब मॉक का दिया था, आई कुड नॉट अटेम्प्ट लास्ट 55 मार्क्स का पेपर in my first mock. So, you know, it was really very bad I felt at that point of time। 195 का मैं attempt ही कर रहा हूँ out of 250, तो कितना ही score आ सकता है। But then gradually I started practicing, I wrote few more mocks, after that it started reducing, and at the end, even at the last mock that I gave for geography, I could score, I could attempt only for 235 or 240 marks out of 250। But at the exam time, I was confident enough that in that moment, in that pressure, I'll be able to cover up that last question as well, and that actually happened। So the journey from attempting for 195 and moving on till 240 was, tiresome, was tough, but again, we need to move out of our comfort zone and start attempting mocks, may that be for GS or essay or say optional। Now, many people are having a doubt about how to approach the philosophical essay, which UPSC is asking nowadays। What I did was, I actually gave 4 mocks for essay, so I had written 8 essays in all directly, like in full fledged form। जो 10-12 पेज होते हैं वो पूरे के पूरे मैंने लिखे हुए थे टाइमर लगा के। However, what I did differently, or an extra effort on essay was कि जो मैंने मॉक लिया हुआ था टेस्ट सीरीज वाला, उसमें दे गिव द एंटायर क्वेश्चन पेपर एज द यूपीएससी फॉर्मेट एज ओनली। सो फर्स्ट ऐसे के लिए दे गिव मी 4 टॉपिक्स, नेक्स्ट ऐसे के लिए दे गिव मी अनदर 4 टॉपिक्स। I wrote any 2 of them, but I had 6 other topics as well। So start brainstorming on them, because they are those topics where you are uncomfortable। आपने वही अटेम्प्ट किए जो आपको सबसे ज्यादा इजी लगे वो 8 में से। तो जो टफ लगे उनके ऊपर आराम से ब्रेनस्टॉर्म करें, उनके ऊपर स्ट्रक्चरिंग बनाओ, आप कैसे इंट्रोडक्शन कर सकते हो, आप कैसे एग्जांपल्स लगा सकते हो, आप कैसे आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकते हो, आप कैसे लिंकेजेस डेवलप कर सकते हो पैराग्राफ के अंदर, पूरे ऐसे में कंटिन्यूटी कैसे डेवलप कर रहे हो, ये सारी चीजों पे ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए। तो एक अगर मॉक आप दे रहे हो उसमें से
कलेक्टिवली यू कैन से आपका 8 टॉपिक्स या 8 थीम रेडी हो जाएगा। इमेजिन गिविंग 4 सच मॉक्स, कितने टॉपिक आपके क्लियर हो सकते हैं? अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई डिड ईच एंड एवरी टॉपिक, मेरे पास 32 टॉपिक्स थे, नो, आई ब्रेनस्टॉर्म फॉर अराउंड 20 to 8 बाकी मेरे पास थे। सो यू कैन से ऑलमोस्ट 28 to 30 एसेज मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर लिए थे फॉर दिस थिंग। एंड एक्चुअल एग्जाम में भी थीम गॉट picked up, so now that you have already brainstormed on that theme, so you can easily attempt those। और 10-12 पेज प्रैक्टिस की होंगी तो स्ट्रक्चरिंग के साथ में भर जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट यस, प्रैक्टिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। और सेटिंग अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर दिस एंटायर 90 days का गैप बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू स्ट्रेटेजाइज बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको ऑप्शनल में ज्यादा खींचना है, आपको जीएस 4 एंड एसए में ज्यादा खींचना है, आप नॉर्मल जीएस में खींचना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। स्पीकिंग अबाउट द लैंग्वेजेस दैट वी हैव इन मेन, I don't think languages play that much of defining role, because English, like I was an English student, so English का basic grammar and all एवरीवन नोज। अगर नहीं पता तो आप ग्रामर कर लेंगे अगर बेसिक, एंड ऐसे का थोड़ा बहुत भी आप लिख लेंगे, तो अगर पीवाईक्यू अगर देख लिया आपने तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से इजीली स्कोर हो सकता है। कॉम्प्रिहेंशन हो गया यहाँ से, ये सब जगह से। So scoring 75 marks out of 300 for both the languages is not that difficult, I feel. So I won't be delving much into those two papers. Now, just a second. Yes, my optional was geography. So geography पे अगर कुछ बात करूँ तो like there would be people attempting from for geography as well. So geography में paper, there are obviously two papers. Paper one is the world geography, physical and human. Paper two is totally related to India. Now what I did unique this time was linking those two syllabus while presenting my answer. Like अगर पेपर वन का क्वेश्चन दिया है तो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो इंडिया भी वर्ल्ड का पार्ट है, तो यू कैन यूज इंडिया का एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड वेरी इजीली। एंड पेपर टू के लिए तो ऑब्वियसली यू आर यूजिंग इंडिया के एग्जांपल्स, बट कभी कभार इफ एट ऑल टाइम कंस्ट्रेंट में यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर और रिकलेक्ट एनी काइंड ऑफ इंडिया रिलेटेड एग्जांपल, आप वर्ल्ड का लगा सकते हो। ब्लैंक रखने से अच्छा तो कुछ बेटर ही होगा, कुछ लिख दिया। एंड एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हो तो केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केस स्टडीज बोलिए, आप एग्जाम्पल बोलिए, जहाँ पे एक डायग्राम होगा काफी अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ, उसमें आप अपना क्रिएटिविटी लगा सकते हो। बट ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रिपरेशन स्टेज में होनी चाहिए। लाइक चाहे वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जब आप पढ़ रहे हो आपका ऑप्शनल तभी, या आप रिवाइज कर रहे हो उस टाइम पे, या फिर आप पहले ही जब पढ़ रहे थे तभी। इट कांट बी इनोवेटेड ड्यूरिंग द एग्जाम सिनेरियो, वहां पे रेप्लीकेट होता है, वहां पे इनोवेशन का स्कोप बहुत कम रहता है, बिकॉज देयर इज ऑब्वियसली द टाइम कंस्ट्रेंट दैट वी फेस। तो उस टाइम अगेन मैंने जो पहले बताया सेकेंड टाइम रिपीट भी किया था, फिर से वही बता रहा हूँ कि आप रिवर्स इंजीनियर करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ऑप्शनल के पेपर एकदम लास्ट में होते हैं। सो यू आर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ गिविंग 7 पेपर्स बिफोर दैट। लास्ट पेपर, लास्ट दोनों पेपर लास्ट डे पे होते हैं, नेक्स्ट संडे में। एंड these are one of the most optionals play a very important role in getting your selection। and अगर आपका सिलेक्शन भी हो रहा है, हो जाता है, तो आपका रैंक भी बहुत बहुत डिसाइड करते हैं, रैंक डिसाइड करने में बहुत मैटर करता है ये। सो आई वुड से ऑप्शनल को फोकस नहीं कर, फोकस ज्यादा रखना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट होल्ड्स 500 मार्क्स and it plays a very important role in our entire course of UPSC civil services। so geography में बेसिक मैंने स्टडीज अपने हिसाब से किए थे। आई हैड माई स्पेसिफिक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक विथ मी। फिर उस पर एड ऑन्स मैंने एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से किए थे, करंट अफेयर्स पढ़ पढ़ के वहां से कुछ उठाए थे, कुछ ऑनलाइन यूट्यूब से या एनी विच वेज जहाँ से भी मिल रहे हैं वहां से मैंने उठाए थे। कुछ सोर्सेस या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी मैथ्स आते हैं, केस स्टडीज आती है, यू कैन रेफर देम, वहां से आप ले सकते हो। हर चीज लेनी जरूरी नहीं है, आपको जो सही लग रही है, आपको जो कंफर्टेबल लग रही है, अब वो उठाइए, आप उसको फोकस करके उसको नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज वो पूरे नोट्स के बंडल में से अगर आपने 10 केस स्टडी आपको उठानी है तो वो पूरा रखने की जरूरत भी नहीं है, उस 10 को समझिए अपने तरीके से, उसको अपने नोट्स में या एग्जाम्पल में रख लीजिए। बिकॉज एग्जाम टाइम में भी यू डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस। आपने जितना समझा उसको एक बार लिख लिया अपने नोट्स में, तो आप रेप्लिकेट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। एंड अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि आपने जो रिसोर्सेस रेडी किए हैं अपने लिए,
ट्राई लिंकिंग इट टू डिफरेंट थिंग, कि आप कैसे लगा सकते हो इसको मल्टीपल जगह पे, नॉट जस्ट इन ज्योग्राफी, आप जीएस में भी लगा सकते हो इस चीज को। तो वैसे आप करिए तो आपको एक बेटर आउटपुट मिल सकता है, कम मेहनत करके काफी ज्यादा आउटपुट मिल सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑप्शनल, आई वुड से। आंसर राइटिंग, लोगों को जनरली क्वेश्चन होता है आंसर राइटिंग पैराग्राफ वाइज करें या पॉइंट वाइज। आई हैव ऑब्जर्व्ड, एंड अगेन मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे वैसे भी आदत पॉइंट वाइज की थी, एंड आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व कि पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग गिव्स यू मच मोर यू नो freedom in expressing answers in a multiple much more multiple dimensions. So I would suggest कि point wise अगर आपका literature optional नहीं है और जीएस की अगर आप बात कर रहे हो तो point wise करेंगे तो better होगा, but yes आप ये ensure करिए कि question में जितने सब questions दिए हुए हैं उस हर एक सब part को आप address कर रहे हैं, and that too in a multiple windows, through multiple windows। अगर आपको question पूछा गया किसी के challenges के बारे में तो आप चैलेंजेस तो दे ही रहे, उसके अगर पूछा नहीं है तो भी एक दो सोल्यूशन, सोल्यूशन पूछा ही है तो फिर उसमें तो आपको लिखना ही है, बट उसमें देन ट्राई करना कि आप कितने मल्टीपल वे से दे सकते हैं। जैसे अगर किसी एनवायरमेंटल इशू का प्रॉब्लम है तो आप उसमें डाल सकते हैं कि एक ह्यूमन एंगल डाल दीजिए कि बिहेवियरल चेंज भी आपको लेना पड़ सकता है। आप साइंटिफिक एंगल डाल दीजिए कि साइंस का हेल्प भी लेना चाहिए, कि कोई कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का केस स्टडी आपके पास एग्जाम्पल हो, वैसे आप लिंक करके एक होलिस्टिक आंसर बना सकते हैं। So that was that like mains answer writing is an art, I would say, because उसके अंदर ना आपको लिख लिख के ही प्रैक्टिस आएगा, जस्ट इन रफ स्केचिंग, और मे बी आई हैव सीन पीपल जो मुझे बताते हैं कि मैं सिर्फ पॉइंटर्स लिख लेता हूँ, एंड देन आई एम एबल टू सेव मच मोर टाइम ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, और मैं ज्यादा क्वेश्चंस कर सकता हूँ, दैट्स अ गुड थिंग, बट दैट हैपेंस ओनली व्हेन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कमांड ओवर योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आप स्टार्टिंग से वो करने लग जाओगे तो एग्जाम टाइम के अंदर आप फिजिकली टायर्ड हो जाते हो। कई बार लोगों का ऐसा होता है कि पेन पकड़ी नहीं जा रही है लास्ट पेपर के टाइम पे, जैसे मैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग का आपको बता रहा हूँ, फिफ्थ पेपर जीएस 4 का आप लिख रहे हो, उस टाइम पे शोल्डर पेन हो रहा है, मेरा रिस्ट पेन हो रहा है, पेन पकड़ी नहीं जा रही फिंगर्स में, ये प्रॉब्लम्स भी लोगों को होते हैं। दीज आर माइनर प्रॉब्लम्स विच वी नॉर्मली डोंट फोकस अपॉन, बट एग्जाम टाइम में ये होते हैं। अगर ये बेसिक वाले हो जाते हैं ना तो आपका जो मेंटल फोकस होता है या मेंटल स्टेट होता है वो काफी हड़बड़ा जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लिख के ही प्रैक्टिस करते जाइए एंड एनालाइज करते जाइए उसको कैसे कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता था कि आई नो डाउट आई जॉइन टेस्ट सीरीज फॉर मी। हाउएवर बिफोर दैट, जब आप तैयारी कर रहे हो, लाइक पीपल विल बी वाचिंग इट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज एज वेल दिस वीडियो, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप ना टॉपर्स के आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं अलग सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो आप उनके आंसर कॉपीज उठाइए, वहां पे जो क्वेश्चन लिखा है आप लिख के आप अपने हिसाब से ट्राई करिए कि व्हाट वुड बी द इंट्रोडक्शन टू दिस, हाउ विल आई अप्रोच दिस आंसर, क्या स्ट्रक्चरिंग हो सकता है मेरा, क्या कंटेंट हो सकता है, मैं क्या किस तरीके से इसको कंक्लूड करूंगा या करूंगी। आपने ये लिख लिया अपने कॉपी पे, आपका नंबर 1 प्रैक्टिस हो गया। नंबर 2, नाउ यू विल कंपेयर विद द टॉपर। तो आपको पता है कि जिस बंदे को या बंदी को यूपीएससी में अच्छा बताया हुआ है, या जिसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा था, जिसका यूपीएससी को बेटर लगा था, जिसको स्कोरिंग अच्छा मिला हुआ है, उसने और आपने कितना अलग लिखा हुआ है, कितना डिविएट हो रहा है। ऑब्वियसली सब्जेक्टिव पेपर है तो डिविएट होंगे, बट देन जो रेफरेंस होता है वो ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो टॉपिक से डिविएशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो यू कैन जस्ट टेक डाउन, कुछ डेटा होगा उनका अच्छा लिखा होगा, खास करके जीएस 4 में एग्जाम्पल्स अच्छे लिखे होते हैं, कहीं पे कुछ कोट्स मिल जाते हैं, जस्ट उठा लो वहां से, यार किसी ने मेहनत की है इतनी, ले लो उसको रेप्लिकेट कर दो, अपना बना लो उसको। ऐसे भी हो सकता है काफी अच्छे से। मैंने काफी चीजों का काफी ऐसे के अंदर मैंने बहुत ऐसा किया हुआ था, लोगों का एग्जाम्पल्स था, कुछ केस स्टडीज थी, कुछ एनेक्डोट्स थे, बहुत लोगों ने अच्छे लिखे हुए थे, मैंने वैसे एज इट इज उठाए थे, यूज नहीं कर पाया, बट देन those things gave me a sense of confidence that okay I have some good material with me for essay। और जो टॉपर्स लोग लिख रहे थे मेरे पास वो भी है, मैंने खुद का रिसर्च करके भी लिखा हुआ है, एंड आई हैव रिवाइज्ड इट फॉर क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सो आई एम नाउ वेल इक्विप्ड फॉर अटेम्प्टिंग माय एसे पेपर। सो दिस वाज द कॉन्फिडेंस दैट आई गॉट आफ्टर डूइंग ऑल दिस। तो हर चीज नॉलेज के लिए नहीं की जाती, कुछ चीजें कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए भी की जाती है, बिकॉज यूपीएससी इज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो गेम ऑफ माइंडसेट, आप किस माइंडसेट से जा रहे हो एग्जाम सेंटर में। So that's all about, I would say, the mains.
coming to the last and the most dynamic part of UPSC, which is the interview phase. So this was my first interview at UPSC. So I was also quite, you know, uh, I didn't have much clueless. I was actually clueless, and I didn't have much idea about how the interviews at UPSC would be going, because मैंने भी सिर्फ mock interviews देखे हुए थे आज तक जो यूट्यूब पे जनरली चलते हैं. तो आई वॉज क्वाइट एंड फन फैक्ट वॉज ये कि 19 दिसंबर को शेड्यूल आया एंड आई हैड माई इंटरव्यू ऑन 8 जनवरी. सो आई जस्ट हैड 20 days विथ मी, जहाँ पे आई हैव टू right from DAF to current affairs to my optional to everything, you can say. And it was a challenging journey, a highly uncomforting journey, but looking at the scores or looking at the feeling that I got after completion of my interview, just standing outside the UPSC Bhavan, it felt that okay, whatever I did was a good thing, and it actually got reflected in my interview marks as well. So I would what I would suggest is that initially for the interview one must be very well versed about his or her DAP. उसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं आपके तरफ से जो लिखी गई हैं उस हर एक वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए. उसका लिंक यदि हिस्ट्री से हो रहा है या किसी रिलीजन से हो रहा है या ओवरऑल कुछ सिंबलाइज कर रहा है हर एक वर्ड, तो आपको उसके बारे में काफी अच्छे से पता होना चाहिए. And I would say interview is much more about the mind game or the confidence that you have, because just look at my case. मैं फर्स्ट इंटरव्यू देने जा रहा था, 20 दिन थे मेरे पास. उस 20 दिन में मैं क्या ही बड़ा नॉलेज गेन कर सकता था कि जो मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट में या 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पाया, ऐसा तो था नहीं. बट विद द सेम नॉलेज दैट आई हैड विद फॉर द मेंस, उसके अंदर थोड़ा सा एडिशन, बहुत ज्यादा पॉलिशिंग ऑफ दैट knowledge, and the positive mindset that I had of approaching any kind of question that was put in front of me was something that played a crucial role in my interview. So पीपल से कि 20 दिन या जो भी पीरियड है आपका मेंस क्लियर होगा, उसके बाद आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड करेंगे फुल फोकस में. सो आई डोंट थिंक दैट एक्चुअली हैपेंस. इंटरव्यू की तैयारी या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है वो पूरे प्रोसेस में ही हो जाता है. The way you start thinking about the different aspects of different problems of the society, the way you start approaching the challenges, ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं. The positivity that you show, that you see in any situation is your personality. कुछ लोग होते हैं जो critics होते हैं, so that's his or her personality, no problem. बट ये चीज आप नेचुरल है तो वैसे ही, बिकॉज इंटरव्यू के अंदर दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, सो वन हैज टू बी क्वाइट नेचुरल ओवर देयर, बिकॉज आप कितना भी फेक ट्राई करोगे आई डोंट थिंक वो काम करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल गेट अवे, काफी पीपल निकल जाते हैं काफी बार, बट मेरे हिसाब से आई फील कि जितना नेचुरल रहते हैं इंटरव्यू में उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट और इफेक्टिवली क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हैं. So, speaking about my interview experience, it was actually a very good experience. जो 30 minutes का सेशन होता है अंदर, उसके अंदर like everyone might have already discussed, 5 लोग होते हैं, there's a one chairman of the panel. So the interview went really well. It was highly dynamic. Few of the questions were from my dad. However, the themes that each of the members quite diverse. I tackled questions from Mumbai's real estate development, since I had a background in real estate. I got questions for they say tourism in India or Maharashtra's tourism. I also got questions on the liquor policy of Maharashtra and Gujarat, the comparative analysis. I got questions on PM Gati Shakti and the infrastructure challenges that India is facing. So quite a diverse arena of questions were asked to me in my interview, but I was able to tackle them quite well. And the atmosphere within the interview room was quite good, I would say, because I didn't feel at any point of time that it was an interview in any case. I felt that there was a healthy discussion going on between me and the members of the panel. So uh, that again that plays a very important, that also plays an important role in how confident you are or what mindset you are taking into the uh, this interview.
So that's that from my side for this thing, interview phase. And speaking about some miscellaneous questions, I would say there were questions on newspaper reading and stuff. So newspapers is must, I would say, for both the beginners and the experienced candidates, because newspapers give you number one, give you the events, happenings and the current events. Number two, they help you build your content on any specific topic, because well, you can say the topics get continued or the issues get continued for at least a week or so. So you get different dimensions, different perspectives of people mentioning their point of views on a specific issue. So, building up your mains content is very important, and newspapers helps us there. At the same time, we subconsciously, start analyzing those editorials, those verbatim editorials, and getting a crux out of it. Now, link this to your CSAT paper. CSAT में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन में यही तो होता है। बड़े से पैराग्राफ दिए होते हैं, पढ़ने के बाद आपको पूछा जाता है क्या है इसका कंक्लूजन। यही चीज तो आप वहां पे कर रहे हो सबकॉन्शियसली। सो अगेन व्हाट आई टोल्ड यू वाज कि आप जो भी कर रहे हो उसके मल्टीपल जगह पे फायदे होने चाहिए, एंड यहाँ पे हो रहे हैं न्यूज़पेपर से, तो क्यों ना करें। व्हाट आई डिड वाज आई फॉलोड टू न्यूज़पेपर्स अल्टरनेटिवली, नॉट बोथ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक होता है जो स्टैंडर्ड सब लोग कर रहे हैं, एक हिंदू है, एक इंडियन एक्सप्रेस है। आई पर्सनली फेल्ट इंडियन एक्सप्रेस ऑन अ मच बेटर नोट, सो मैं उसको ज्यादा रेफर पढ़ता था एज कम्पेयर टू हिंदू। But yes, both the newspapers are equally good, and one must, I would say, not one can, but one must follow at least one newspaper while their preparation. Oh, and coming to the test series and stuff, yes, test series आपको प्रैक्टिस के लिए लगा लेनी चाहिए। उनकी इवैल्यूएशन किस तरीके से हो रही है वो इतना इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। यस, यू कैन आस्क द कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द टॉपर्स कॉपीज, यू कैन से, बिकॉज टॉपर ने उस साल कितने लिखे हैं, कैसे लिखा हुआ है, या आपने जो टेस्ट लिखा उस टेस्ट में टॉपर को कितने मिले हैं, और उसने क्या क्या लिखा था, ये अगर आपको पता चल रहा है तो यू कैन, आप कॉम्पिटिटिव रेस में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आपको वहां से पता चलेगा कि किसने लोग अगर आपसे बहुत ज्यादा अच्छा लिख रहे हैं तो यू नीड टू इम्प्रूव, यू नीड टू बकअप। सो ये वहां से आपको पता चलेगा। सो टेस्ट सीरीज ऑल्सो लाइक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो तो लाइक अनडिफाइनेबल है ही। there's this question on maps. Maps को कैसे किया जाए, मैपिंग जरूरी है या नहीं। तो मैपिंग, लाइक आई अगेन वुड बी मच मोर बायस्ड बिकॉज मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो मैपिंग बाय डिफॉल्ट वो वहीं पे हो जाता है मच बिफोर द प्रीलिम्स वाला पार्ट। बट यस, फॉर मैपिंग आई वुड से कि वो एक दिन का काम नहीं है। लाइक आज आप मैपिंग करने बैठे, आज मेरा पूरा मैपिंग हो गया, कल चलेगा, या मे बी अब मैं एक वीक बाद फिर से कर लूंगा, ऐसे नहीं होता एग्जाम से पहले। आपको मैपिंग रेगुलरली करते रहनी होगी। ये कैसे होगा? सो मैपिंग को डिवाइड कर लीजिए दो चीज में, एक करंट अफेयर्स का मैपिंग हो गया एंड एक स्टैंडर्ड बेसिक मैपिंग हो गया। बेसिक मैपिंग इज ऑल अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स, द बेसिक लैंडफॉर्म्स एंड स्टफ, या वर्ल्ड में लोकेशंस कहाँ पे कौन सी है, ओशन करंट्स कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, आर यू एबल टू रिप्रेजेंट देम, लोकल विंड्स कहाँ पे कैसी चल रही है, ज्योग्राफी के अंदर जो प्रेशर प्रेशर बेल्ट्स होते हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, आपका डायग्राम बनाने आ रहा है क्या आपको। बिकॉज अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस ये कर लोगे तो जीएस में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए तो ये है, लाइक अनिवार्य ही है, बट ऑप्शनल में भी काफी रहता है ये सब। तो ये हो गया स्टैंडर्ड बेसिक मैपिंग, जो आपको रेगुलरली करते रहना पड़ेगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज इटसेल्फ, कि एक वीक में आप देख लीजिए कैसे है, जस्ट आपको ग्लिम्स करना है। आप देखेंगे, नजर के सामने आएगा, आप अंदाजा लगा लेंगे रिलेटिवली ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, अगर कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो। बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, कुछ क्वेश्चंस अगेन प्री में काफी ज्यादा आते हैं, वेटलैंड्स के ऊपर हो गए, लाइक वेटलैंड्स तो अभी 80 हो गए, काफी ज्यादा है। तो वन मस्ट बी एटलीस्ट अवेयर ऑफ कि उनके लोकेशंस कहाँ पे है, क्या है, कैसे, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, ये सारी चीजें वन वन पॉइंटर्स में पूछ लेते हैं कभी कभार यूपीएस में, या चांसेस है। सो वन मस्ट बी डूइंग थिंग्स ऑन मैपिंग क्वाइट रेगुलरली। एट द सेम टाइम जो करंट अफेयर्स के मैपिंग होते हैं वहाँ पे, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके देखूं तो ये दिखता है कि कुछ कंट्रीज में जहाँ डिस्टर्बेंसेस है, या जो कंट्रीज इन न्यूज रही है जनरली और ज्यादा टाइम तक, जनरली वहीं से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो से लास्ट ईयर दिस यमन के यहाँ पे
या हाउथी रेबेलियन हो गया, यहाँ पे काफी ज्यादा इश्यूज हुए थे। तो वन कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ दैट एरिया। आप मैपिंग में देख लीजिए रेड सी के आसपास क्या है, पर्शियन गल्फ के आसपास क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो मेंस में काम आएगा खैर, लेकिन लोकेशंस क्या है, कैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं, कितने कंट्रीज आते हैं वहाँ पे, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं, अफ्रीका में लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, सहारा डेजर्ट एक्सपांड हो रहा है तो कहाँ कहाँ कंट्रीज तक जा रहा है, कुछ लिंक कर करके जरा देख सकते हैं। फिर आपको रियलाइज होगा जब आप पीवाईक्यू करेंगे कि ओके दीज थिंग्स आर एक्चुअली एप्लीकेबल है। तो अगर आपने बस एक बार भी नजर से घुमा लिया है मैपिंग को, तो वो आपको याद रह जाता है, बिकॉज दोज आर पिक्टोरियल थिंग्स जो ना आपके सामने होता है, सो यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम। और अगर आप एग्जाम पॉइंट लाइक मेंस के अंदर उसको रेप्लिकेट कर पाए कहीं पे, तो आपका एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा वहाँ पे। तो दैट वाज ऑल अबाउट मैथ्स। एंड यूपीएससी, दिल्ली यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना जरूरी है या नहीं, आई डिडंट गो देयर। So and many of candidates are now relying on the online stuff। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है ही, दिल्ली के क्लासेस के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है। सो wherever one feels comfortable studying hard, आई वुड सजेस्ट कि आप वहां से कर सकते हो। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, लाइक इट हैज मेड थिंग्स एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो आई वुड सजेस्ट कि आपका कुछ भी, आप अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट अगर आपको घर पे रह के ही करना है तो भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। आज के टाइम एंड एज में टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइज हो गई हैं, एंड ऑनलाइन स्टफ इज अवेलेबल। तो आप अगर मेहनत करना चाहते हो तो सारी चीजें हो सकती है। तो अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्ट्रैक्शंस, सोशल प्रेशर, इन सब से कैसे बचा जा सकता है। तो डिस्ट्रैक्शंस एट दिस एज जो ट्वेंटीज वाला होता है उसमें बाय डिफॉल्ट वो ज़्यादा होते ही हैं। So may that be social media or any other such thing. So I would suggest that what I did was I practiced some kind of meditation, थोड़ा self control। सोशल मीडिया के जो एप्स वगैरह है, तो अगर आप एंड्रॉयड या ओएस यूज कर रहे हो तो अनइंस्टॉल रखिए या नोटिफिकेशंस बंद रखिए। ट्राई डूइंग सम काइंड ऑफ यू नो ट्रिक्स फॉर योर ब्रेन कि आप कैसे ट्रिगर ना हो वो देखने के लिए, या अपने लिए टाइम सेट करके रखिए कि मैं इतने टाइम के लिए सोशल मीडिया देखूंगा दिन में, बाकी सारे बंद करके रख दूंगा। या मे बी नेट ऑफ करके रखिए whenever you are studying for that 2-3 hours slot या ऐसा कुछ। you know so these are again very personal things, but अगर आपका लिंक टूट रहा है, अगर आपका दिन का प्रोडक्टिविटी खराब हो रहा है किसी चीज की वजह से, तो आपका टारगेट अगर यूपीएससी एम्बिशन है अगर आपका, और अगर ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही एनी काइंड ऑफ थिंग, तो आपको उसको सेल्फ कंट्रोल से कम करना चाहिए या उसको हटा ही देना चाहिए। So that's all from my side, and if you all have any, like some of you have mentioned few questions, I will go through them one by one। Okay, someone asked me about history optional। Sorry sir, मेरा history optional नहीं था, तो I won't be the best person to guide you for that। But yes, mapping उसमें भी काम आता है। So history के places होते हैं, but then mapping is obviously useful। How to manage GS and optional subjects? सर डिपेंड करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्या सिलेक्ट किया है। अभी मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेक्ट करने का दो मेजर रीजन था। नंबर वन वाज आई लाइक ज्योग्राफी सिंस स्कूल। स्कूल में मुझे पसंद इसलिए था क्योंकि हम लोग की जो मैम थी वो ग्लोब जो आता है वो ग्लोब सबको दे के सिखाती थी कि ओके दिस कंट्री इज हियर, यहाँ पे ये होता है, ये होता है, दिस ओशन इज हियर। सो आई वाज क्वाइट फैसिनेटेड विद दैट थिंग, इसलिए मुझे कॉलेज में आने के बाद भी मैप देखना ये सारी चीजें पसंद थी। एट द सेम टाइम अनदर मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग वाज द ओवरलैप अदर जीएस पेपर्स। लाइक आप जीएससी में एनवायरनमेंट देख लीजिए, आप जीएससी में डिजास्टर मैनेजमेंट देख लीजिए, ज्योग्राफी आता है। जीएस वन में तो ज्योग्राफी वैसे भी आता है, सारे एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो अलग अलग जगह पे। सो व्हाई नॉट टेक अ सब्जेक्ट व्हिच हैज मल्टीपल लिंक्स, और आपको ज्यादा कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये अगर ऐसा कोई आपका नॉन टेक्निकल या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाला ऑप्शनल है, तो आप टाइम को उस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आप जीएस को थोड़ा कम देंगे तो चलेगा। हाउएवर अगर आपका टेक्निकल वाला है, जैसे मेडिकल साइंस या फिर मैथमेटिक्स या फिजिक्स, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा विच एवर इज योर स्ट्रॉन्ग थिंग। लाइक आपको इधर प्रीलिम से पहले ऑप्शनल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप थोड़ा बहुत कम ध्यान देंगे और जीएस पे फोकस करेंगे तो भी चलेगा। अदरवाइज जीएस को इतना कर लीजिए कि आप थोड़ा कम ध्यान देंगे और ऑप्शनल फोकस करके उसके टेस्ट सीरीज को ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे,
तो बेटर रहेगा। सो इट्स अपॉन यू हाउ यू प्ले अलोंग विद दिस, क्योंकि मैं अपने केस में बता सकता हूँ, मेरे को ज्योग्राफी ने मुझे बहुत फायदा दिया था। जीएस के अंदर मैंने जीएस में फिर मेरे लिए बचता ही क्या था, थोड़ा बहुत बचता था, क्योंकि हिस्ट्री वैसे ही मुझे इतना नहीं आता था। तो मैं उसमें जस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज के हिसाब से मैं जितना हो सके उतना कवर अप कर लेता था। ज्योग्राफी वॉज वैसे ही मेरा लिंक होता था, सो आई यूज टू फोकस ऑन GS2 एंड GS4 मच मोर than GS1 and 3. So this was my strategy. Everyone has their own. So I won't suggest anyone do like this, because ये काफी risky था. I would say a calculated risk, but still it was risky. So I played on my strength. I won't suggest you doing like that. मेरी सीसैट की स्ट्रैटेजी सर मैंने ऑलरेडी बता दी है सीसैट में कैसे करता था। आई अगेन रिपीट इन अ वेरी शॉर्ट में कि सीसैट में क्वांट्स और इंग्लिश ये दो होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 45-50 मिनट्स में क्वांट्स करता हूँ। क्वांट्स में जितने हो सके उतने करो, एंड जैसे 50 मिनट होता है शिफ्ट टू इंग्लिश। इंग्लिश में जितनी भी चीजें हैं आप लाइक 27 to 30 क्वेश्चन आते हैं, आई हैव सीन फ्रॉम द PYQ पेपर। तो वो सारे के सारे गो थ्रू कर लीजिए। उसमें आपके स्ट्रेंथ जो है, जैसे मैंने बताया, अजम्पशन वाले क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहे हैं उसको साइड पे रख के बाकी सारे आप कर दीजिए। फिर से क्वांट्स पे आइए, जो बाकी रह गए थे शायद आपके छूट गए होंगे या आपको टफ लगे होंगे, उनको अटेम्प्ट करिए। और लास्ट के 10 मिनट बचे होंगे तो फिर से इंग्लिश पे आइए, जो अजम्पशन वाले क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, क्या कोई बन पा रहा है क्या। अगर कोई बन रहा है तो एक दो को अटेम्प्ट कीजिए। मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बताऊं तो मैं ट्राई करता हूँ कि 50 से 55 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट होने चाहिए। उसमें से कम 40 to 42 क्वेश्चन सही करने। दिस इज माई टारगेट फॉर अटेम्प्टिंग सी सेट। तो ये मैं मॉक में भी प्रैक्टिस करता हूँ, ये मैं एक्चुअल में भी यही ट्राई करता हूँ एक्चुअल पेपर में। तो आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं इस गाइडेंस को आगे लेते हुए। क्वालिटी पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना चाहिए सर? पीवाईक्यू सर, हाँ हाँ, पीवाईक्यू से रिपीट तो नहीं होते, एक आध क्वेश्चन कभी कभार इकोनॉमी में हुआ है, बट आई डोंट थिंक डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट यस थीम्स डू गेट रिपीटेड। तो अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हैं तो वो कौन सी थीम से आया हुआ है, उसके रिलेटेड कितनी जितनी भी चीजें हैं आप वो कर लीजिए एक बार। ऐसे 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 लाइक ऑलमोस्ट 100 कुछ फैक्चुअल होंगे, तो यू कैन से 80 to 85 थीम्स आप सही से कर सकते हो। ऐसे अगर आपने 10 पेपर कर लिए तो काफी ज्यादा थीम्स उसमें भी रेपिटेटिव आपको दिख जाएंगी कि कौन से हो रही हैं। तो यू कैन प्रेडिक्ट कि ये चीजें अगर रिपीट हो रही हैं, और करंट अफेयर्स में भी काफी चीजें इस तरीके से चल रही हैं। सो लेट्स फोकस ऑन दीज एरियाज जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है आने के। तो एक तरीके से आपका वैसे भी पढ़ना तो था ही, बट उस चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया। एंड इमेजिन एक सिचुएशन जहाँ पे आपने कुछ चीजें एंटिसिपेट की होंगी, आपने जो ज्यादा फोकस में पढ़ी और उससे कोई एक आध क्वेश्चन आ गया। So the confidence and the positive mindset that you develop at that point of time in the exam center वो बहुत phenomenal रहेगा, और उससे बाकी 99 क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। That's what I was telling you कि mindset कैसे रोल प्ले करता है। सर यूपीएससी के लिए मीडियम कौन सा बेस्ट है? See, there is always a debate about which medium is best. I attempted from the English medium side, but I have friends who have given UPSC because as UPSC allows us to. But it's upon individuals I feel, because मैं नॉर्मली बात करूँ तो स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल होता है वो ज़्यादा इंग्लिश में मोस्टली अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी में। तो अगर ये दोनों में आपकी लैंग्वेज हिंदी अगर आपकी लैंग्वेज है तो आपको स्टडी मटेरियल काफ़ी इजीली मिलेगा। बट मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे थे जो रीजनल लैंग्वेज में भी देते थे, जो बाकी यूपीएससी अलाउ करता है उसको। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू स्टडी इन इंग्लिश। आप पेपर किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो जब आप लिख टाइम कंस्ट्रेंट्स तो सबके लिए उतने हैं, तो जब आप लिख रहे हो तो ही हैज टू यू नो पुट डबल एफर्ट। आपको सोचना भी है, आपने नॉलेज इंग्लिश में लिया है, आपको ट्रांसलेट भी करना है, यू हैव टू बिल्ड दैट वोकैबुलरी एज वेल, क्योंकि वहां पे बेसिक थोड़ा तो अच्छा वोकैबुलरी उस रीजनल लैंग्वेज में भी चाहिए। तो एफर्ट्स अगर आपके मारने की हिम्मत है और तैयारी है उस लैंग्वेज के अंदर भी, तो यू कैन वेरी वेल चूज एनी अदर लैंग्वेजेस एज वेल। आप बस उसका आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, या मे बी कोई सीनियर है जो आपको थोड़ा गाइड कर पाए, या किसी के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाए आपको जिसमें लिखे हो, तो आप ज्यादा अच्छे से उस पर गाइडेंस ले पाएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें? ओके सर, प्रीलिम्स एग्जाम में जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट मैं जैसे करता था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कितने क्लियर कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन श्योर शॉट मोर देन 90% एक्यूरेसी जो मुझे कॉन्फिडेंस हो,
अगर वो 40 तक जा रहा है तो पूरे पेपर में मैं 85 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करूंगा। अगर वो 35 से नीचे है तो मुझे 90 से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस और अपने एक्यूरेसी के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मैंने मॉक्स दे दे के प्रैक्टिस कर करके एनालाइज करके खुद के लिए निकाला हुआ है। क्योंकि मुझे अपनी एक्यूरेसी फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट जो फेजेस में मैं करता हूँ प्रीलिम्स का पेपर, उसमें मुझे पता है अंदाजन मेरा इतना इतना एक्यूरेसी आता है, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। सो यू कैन ट्राई फॉर योर सेल्फ कि कैसे हो रहा है। अगर आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे आपका स्ट्रैटेजी भी कुछ अलग हो सकता है। सो अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें तो इट वॉज ओनली 75, तो 40 क्वेश्चन ही आपको सही करने थे टेक्निकली स्पीकिंग आउट ऑफ 100। बट देन अगेन नेगेटिव जाता है तो आप कितना बफर रख रहे हैं अपने लिए वो आपके ऊपर है, और कौन से सब्जेक्ट में आप रिस्क ले रहे हैं वो भी अपने ऊपर है। सो अगेन प्लेइंग ऑन जस्ट स्टार्ट प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड प्ले ऑन योर स्ट्रेटेजी कि जिस तरह से आप बना रहे हो मॉक में उसी पे काम करिए। हाउ टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, सर मैंने ऑलरेडी जो बताया हुआ है कि आप क्वेश्चन देखिए टॉपर की कॉपीज में से, खुद के हिसाब से स्ट्रक्चर करिए, आंसर करिए एंड देन कंपेयर करिए। आपको इम्प्रोवाइजेशन कुछ टाइम के बाद दिखेगा। आप ऐसे करते करते और दिन के कम से कम 4-5 क्वेश्चन भी करेंगे आप इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए, तो आपका इम्प्रोवाइजेशन डे बाय डे होगा, स्टेडीली होगा। वन लाइक जादुई छड़ी नहीं है किसी के पास में कि आप फट से काफी अच्छे आंसर्स लिखने लग जाएंगे। खराब आंसर्स लिखेंगे तो अच्छे आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर खराब ही नहीं लिखे तो आप अच्छे कैसे लिख पाओगे। ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्पीशीज दैट आर आस्क्ड इन प्रीलिम्स, सी अगेन स्पीशीज आई वुड से करंट एंड एनवायरनमेंट का मिक्स टॉपिक है। तो स्पीशीज के ऊपर ना अगेन जैसे मैंने बताया कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना होता। तो क्वेश्चन देख के अगर आपको लग रहा है कि मैंने सुना हुआ है, कि बिकॉज यू नो स्पीशीज का क्वेश्चन मोस्टली मैथ द फॉलोइंग में आता है कि ये इस रीजन में सुना हुआ है या समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपको सुना ही नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि लीव दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। और अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, आप बल्कि नोट्स पढ़ेंगे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के कि ये स्पीशीज यहाँ पे मिली, ये स्पीशीज वहां पे मिली है, बट देन क्या है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इतना फैक्ट्स आप याद करके जाएंगे बट एग्जाम में चांसेस ऑफ आस्किंग दोस फैक्ट्स इज रियली वेरी लेस। रैदर प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, जो स्टैटिक वाला पार्ट है उसको देखिए, उसका जो करंट का लिंकेज है उसको देखिए। जैसे लाइक फॉरेस्ट सर्विस का साथ में होता है तो एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस आने ही है। इकोनॉमी आप कर रहे हो, एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी आप कर रहे हो तो एग्रीकल्चर को थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, स्पीशीज वाले को थोड़ा रख दीजिए। बायोडाइवर्सिटी पे खाली बेसिक बेसिक करके जाएंगे आप तो भी चलेगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट या जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसका, उस पर ज्यादा फोकस कर लीजिए। स्पेसिफिक फैक्चुअल चीजें जो होंगी उसको लाइक मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। तो आई फील कि यार ज्यादा डेटा भर के जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि फ्रीली सोच पाते हैं एग्जाम के अंदर इसके लिए। इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओके आई शेयर ऑलरेडी। टॉपर्स कॉपी से एग्जांपल्स कॉपी कर सकते हैं, अरे यस यार टॉपर्स कॉपी क्या नहीं कर सकते टॉपर्स कॉपी से सब कुछ हो सकता है। सर इज इट पॉसिबल टू गिव 2025 अटेम्प्ट इफ आई एम स्टार्टिंग नाउ एंड रेडी टू वर्क फॉर, नहीं आप यूपीएससी के लिए कभी भी तैयारी कर सकते हो यार। लोग अपना ऑप्शनल चेंज करते हैं प्रीलिम्स के बाद, लाइक सोच प्रीलिम का फॉर्म भरते टाइम वो लोग ने ऑप्शन चेंज कर दिया होता है, तैयारी प्रीलिम्स के बाद करते हैं बट फिर भी क्रैक कर लेते हैं। तो अभी तो आप 2025 के अटेम्प्ट का बात करो, यू हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, आप कर सकते हो। ओके सो आई थिंक दैट्स फ्रॉम माय साइड। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, so thank you everyone. I hope you had a good time. So this is Smith Patel, All India Rank 562.